Good morning, everyone. In previous class, we have seen how transformer works and how its theory is defined, and we have seen that it is actually the power which is transferred from primary to secondary. So, transformer is used in stepping up or stepping down the voltage level so that we can simply use whichever voltage level we want to use. All right, so one very important application of transformer, the theory is stepping up or down of the low voltage level. So it is used in practically for transmission of power from one position to any other location, or you can say from generating station or from electricity generating station to the last consumer. All right, so how it works and why it is needed, this we are going to see in today's video. And next we will start AC generator. So see, long distance transmission of electric power, how transformer is used in this particular application. See, the most important application of transformer is in the transmission of electric power from a power station to far away areas where it is actually used. See, as we want to send power or energy from one position to another position, and we have transmission lines, that is electric wire. So when we want to send electricity, generally we use that is current. All right, so for transfer of electricity we need current, but as we know that the loss of amount of energy through transmission is given by Joule's electrical heating, that is I square RT. All right, so we can say a large amount of energy will be lost while transmission as heat during transmission. So which this heat is given by I square RT, where R is the resistance of the transmission line, I is the current flowing in that transmission line. As you can see, I is in second power. So when current is square, means when current is whatever its value, the heating effect will be, or the heat loss will be very high in terms of current square. All right, so one reason is this, and second, one thing which we have to keep in mind while choosing the transmission voltage and transmission current. Now next is the voltage drop across transmission line. Usually when current I is flowing in the circuit and R is the resistance of the circuit or the transmission line, then we can say large, if I is large, current बहुत ज़्यादा है अगर, large voltage drop occurs along the line when current is large. क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन है तो रेजिस्टेंस तो ज़्यादा होगा वहाँ पे, तो किससे गवर्न होगा, I into R, V is equals to IR. This will be the voltage drop across the wire having resistance R and flowing current I. So voltage drop
बहुत ज़्यादा होगा करंट के क्रॉस, तो हमारे पास जो ट्रांसमिशन होने के बाद जो वोल्टेज मिलेगा वो जनरेटिंग स्टेशन से काफ़ी कम मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं हेंस, ये दो ठो तो लॉज हो गए, हेंस द वोल्टेज at the receiving end will be much smaller than obviously the generating station, then that at the generating station but see, this is all for larger current. When current is large, when we are transferring power, same power, the voltage will be small. So what about higher current? When current is higher through the wire, one more thing is very problematic, that is for higher current we need very thick wires. all right, तो अब देखिए वहाँ समस्या क्या आती है। जस्ट बिकॉज एक और चीज़ है, टू कैरी लार्ज करेंट्स एंड टू कीप द रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन वायर्स लो, रेजिस्टेंस लो रहेगा तभी ना वोल्टेज ड्रॉप वो होगा, क्या कहते हैं, कम। आर को बड़ा करने के लिए आर इजकल्स टू रो एल बाई ए, यानी ए को हमें बढ़ाना पड़ेगा तब आर कम होगा। इट मीन्स थिकनेस शुड बी वेरी थिक वायर, और थिक वायर यूज़ करने का मतलब यानी मटेरियल ज़्यादा यूज़ करना है, यानी बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, सो दिस होल थिंग ऑफ यूजिंग हायर करंट एंड हायर वैल्यू ऑफ करंट and installing thick wires are not feasible, means बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ये हमारे लिए cost effective नहीं है। So we can say the long distance power transmission at low voltage and high current, obviously low voltage then there will be high current, is not efficient. High current you can say is neither efficient nor feasible, neither efficient नॉर फीजिबल, किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। ना ये बहुत एफिशिएंट है कि बहुत अच्छी पावर दे रहा हो, या वोल्टेज हाई दे रहा हो हमारे कंज्यूमर पॉइंट पे, और ना ही ये फीजिबल है, यानी ये कॉस्ट इफेक्टिव है। सो वी हैव मेड सम अरेंजमेंट फॉर ट्रांसफरिंग द पावर, एंड दिस इज फर्स्टली theoretically what is happening, that we are transferring the power at very high voltage, यानी इस बार हम करंट को कम रख के वोल्टेज को हाई करके, यानी वोल्टेज जनरेटिंग स्टेशन से ही वोल्टेज को बड़ा कर देते हैं और फिर उसको ट्रांसमिशन करते हैं। फिर उसके बाद जिस पर्टिकुलर जगह पे वहाँ पे उसको रिसीव करना है वहाँ पे उसका वोल्टेज ड्रॉप कर लेते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे यूज़ होने वाला है। ट्रांसफार्मर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से जनरेट करके दी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे हायर है, वहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है वोल्टेज। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन लाइन पे वोल्टेज को उतना ही रखा जा रहा है। फिर एक कहीं सब स्टेशन होता है जो हमारे घरों के आसपास होता है कुछ दूरी पे, वहाँ पे हम उसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। फिर एक होता है हमारे कंज्यूमर सब स्टेशन होता है, जैसे हमारे मोहल्लों में लगा होता है ट्रांसफार्मर, वहाँ पे हम उसको और ज़्यादा स्टेप डाउन करते हैं। फिर हमारे घरों में 220 वोल्ट की सप्लाई आती है।
So for this I am going to make a schematic diagram, that is use of transformers. See here I am making a transformer. When if I say at generating station power is generated at 6600 volts, for one example 6600 volt is generated, we are going to step up it using a transformer. So for step up we need transformer this at this point. ये कहाँ पे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग स्टेशन, जनरेटिंग स्टेशन। यहाँ पे पहला एक ट्रांसफार्मर कैसा लगा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये बहुत ही कम करंट पे बहुत हाई वोल्टेज हमने बना दिया। मान लीजिए मैंने कहा कि 1 लाख वोल्ट्स में रखना चाहता हूँ, 1,32,000 वोल्ट्स मैंने रख दिया, ठीक है। दिस इज़ वेरी हाई वोल्टेज। नाउ दिस इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू दी वायर। जो आप देखते हैं कि बड़े बड़े टावर्स लगे होते हैं जिसके थ्रू ट्रांसमिशन होता रहता है, जिनकी लेंथ ऑलमोस्ट 150 मीटर्स के अराउंड होती है जिन टावर्स की, उसके थ्रू वायर्स गए रहते हैं। तो उसमें लगभग 1 लाख वोल्ट का ये जो ट्रांसमिशन है वो हो रहा होता है। अब उसके बाद उस पर्टिकुलर जगह से हम एक सब स्टेशन तक पहुंचते हैं, वहाँ पे ये वायर जुड़ते हैं और वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर के थ्रू इस वोल्टेज को कम किया जाता है। कितना कम किया जाता है? पहले एक सब स्टेशन पे आया, जैसे मान लीजिए आपके जो ईस्टर्न यूपी है उसमें ओबरा या फिर इस जगह से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट हुई, दैट इज़ 1 लाख वोल्ट। उसके बाद आपके सिटी में आई, सिटी के आउटसाइड कहीं कोई सब स्टेशन बना है, वहाँ पे इस वोल्टेज को ड्रॉप किया गया एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू। दिख रहा है ये स्टेप डाउन होगा क्योंकि सिटी में आपके आ चुकी है, लेकिन अभी ये आप तक नहीं पहुंची है। ये क्या है? ये एरिया और सिटी सब स्टेशन है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो वोल्टेज है हम कह सकते हैं कि ये वोल्टेज मान लीजिए 11,000 वोल्ट्स है, 11,000 वोल्ट, ये आपने सुना होगा। अब देखिए, अब इतने से भी काम नहीं चलेगा क्योंकि घर में तो ये नहीं देना है, तो मोहल्लों में लगा होता है छोटा ट्रांसफार्मर, जिसका काम क्या है? इस पर्टिकुलर 11,000 वोल्ट को भी और स्टेप डाउन करना। यानी ये क्या करेगा? यहाँ पे मोहल्लों में कन्वर्ट कर देगा, किस में? ऑब्वियसली 220 वोल्ट, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी रखी जाती है होम कंजम्पशन के लिए? 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये हमारा कंज्यूमर सब स्टेशन है। जैसे कि आप कह सकते हैं कि मान लीजिए जैसे आपके लोकेशन के सबसे करीब है, ठीक है, जो इस मोहल्ले के आसपास है, उस पर्टिकुलर जगह पे वो कौन सा सब स्टेशन कहलाता है? कंज्यूमर सब स्टेशन, कंज्यूमर सब स्टेशन। अब कंज्यूमर सब स्टेशन से आपके घरों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है और बीच बीच में 1-2 ट्रांसफार्मर गलियों में भी मोहल्लों में भी लगाए जाते हैं, जिसका काम होता है कुछ छोटे मोटे लॉसेस को कंटेन करना कि अगर वो लॉस हो रहे हैं तो वो ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ट्रांसमिशन तैयार होता है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये, ठीक है, जिसके थ्रू हम बिना करंट को बढ़ाए, करंट को कम रखते हुए वोल्टेज के थ्रू हाई वोल्टेज पे ये ट्रांसमिशन होके आ रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या होता है? इसमें जो करंट है, जस्ट बिकॉज सिंस I इज इक्वल्स टू P/V, सो फॉर करंट टू बी लोअर, वोल्टेज टू बी हायर, ठीक है ना। सो फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ पावर द पावर लॉस इज लेस इफ I इज लेस और V इज हाई। ये हमको पता ही है कि करंट कम होगा तो पावर लॉस कम होगा यहाँ पे, और इस तरह से यूज़ करते हैं। अब देखिए कुछ ट्रांसफार्मर चूँकि एंड कर रहे हैं इसलिए कुछ उसके यूजेस आपको बता देते हैं। इसको PDF में भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। सो सी,
स्मॉल ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन रेडियो रिसीवर्स, टेलीफोन्स, लाउड स्पीकर्स। ये हमने बहुत पहले ही पिछले की टेक्नोलॉजीज़ में देख रखा है ना, हमारे घरों में पहले होते थे छोटे ट्रांसफार्मर्स। उसके अलावा वोल्टेज रेगुलेटर्स जो होते हैं, टीवी में लगे होते हैं रेगुलेटर, उसमें यूज़ होता है। स्टेबलाइज्ड पावर सप्लाईज आर ऑल्सो यूजिंग दिस ट्रांसफार्मर जस्ट बिकॉज फॉर वी नीड लोअर वोल्टेज। इंडक्शन फर्नेस में यूज़ होता है। कैसे यूज़ होता है? वो करंट को बढ़ाता है, वोल्टेज लेवल को कम रखते हुए करंट को इंक्रीज करेगा, क्योंकि इंडक्शन फर्नेस में हमें हाई करंट चाहिए तभी वो हीटिंग होगी। ठीक है, इसी तरह एक्सरेज जब हमें पैदा करनी होती हैं तब हमें बहुत हाई वोल्टेज चाहिए, तो वहाँ पे भी यूज़ होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफार्मर्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे AC generator. This topic you have also studied in class 10. Today we are going to study the construction of an AC generator. So firstly, what is AC generator? See, a generator or dynamo, what is only the generator? So a generator or a dynamo is a new name for you. It is actually converts the mechanical energy into electrical energy. That is why it is called dynamo. Alright, तो सम काइंड ऑफ डायनेमिक्स इज इन्वॉल्व, कुछ ना कुछ मोशन कर रहा है तभी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। सो अ जनरेटर और डायनेमो इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो व्हाट इज AC जनरेटर? सी, AC जनरेटर इज द वन विच प्रोड्यूसेस अ करंट दैट alternates or changes its direction regularly after a fixed interval of time. मतलब AC जनरेटर एक ऐसा जनरेटर है, जनरेटर तो दो तरह के हो सकते हैं, AC और DC, पर ऐसा है जो ऐसी करंट जनरेट कर रहा है जो अल्टरनेटली अपनी पोलैरिटी चेंज कर रही है। ऑब्वियसली ऐसी करंट कौन सी करंट कहलाती है? अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। इसका मतलब अल्टरनेटिंग जनरेटर एक अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू अल्टरनेटिंग फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब देखेंगे कैसे, ये हमने पढ़ रखा है पहले ही। व्हेन वी वर स्टडीइंग रेक्टेंगुलर कॉइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी हैव स्टडीड द सिमिलर थिंग, बट टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट AC generator, that is the practical application of that particular theory. So principle, on which principle it works, I am revising it just because we have studied it already. The working of an AC generator is based on the principle of electromagnetic induction. When a closed coil is rotated in a uniform magnetic field, कैसा मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। कॉइल कैसी होनी चाहिए? क्लोज्ड कॉइल होनी चाहिए। और कॉइल की इनिशियल पोजीशन या हमेशा ही कॉइल की जो रोटेशनल एक्सिस है जिसके अबाउट हम रोटेट कर रहे हैं, दैट एक्सिस मस्ट बी एट 90 डिग्री टू द मैग्नेटिक फील्ड। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस, कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता है और एक इंड्यूस्ड EMF जनरेट होता है कॉइल में, एंड हेंस अ करंट इज सेट अप इन इट। सो दिस इज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, सो आई एम गोइंग टू रिवाइज इट हाउ इट वर्क्स। आपको याद दिला दें कैसे था वो, मैंने पहले ही बता रखा है। देखिए, सबसे पहले तो एक थ्योरेटिकली समझ लीजिए कि क्या था। मान लीजिए ये दो मैग्नेट्स के सिरे हैं, नॉर्थ साउथ। हमने क्या किया, ये फील्ड लाइंस इसकी होगी इस तरह से, ठीक है, बहुत सारी फील्ड लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब देखिए, अगर हम मान लीजिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल की तरह वर्क करता है, ये स्केल है, इसको मैंने 90 डिग्री पे ऐसे किया ओरिएंट और इस तरह से प्लेस किया, तो आपको पता है कि इसके थ्रू पास होने वाली फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा हैं इस टाइम में। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम इसको इसी तरह से ऐसे रोटेट करते हैं, ऐसे, ये इतना ही हिस्सा, अगर मान लीजिए इतनी लंबी स्केल ना होती, केवल इतना छोटा टुकड़ा होता है यहाँ से यहाँ तक। अभी ये 90 डिग्री पे है ये प्लेन, देखिए ये ऐसे,
तो सारी लाइंस इसमें से पार कर रही हैं, मैंने इसको ऐसे घुमाना शुरू किया, फील्ड लाइंस कम होती चली गई ना, और इस टाइम में इसमें से एक भी फील्ड लाइंस पार नहीं कर रही हैं, इस टाइम इसमें से 3 ही फील्ड लाइंस पार कर रही हैं, इस टाइम इसमें से सारी फील्ड लाइन पार कर रही हैं। फिर ये ऐसे रोटेट करता रहता है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू और थ्रेडिंग थ्रू दिस रेक्टेंगुलर लूप, मान लीजिए इसके अंदर एक होल है, ये छेद है या इसके अंदर से एक स्पेस है, तो उसके थ्रू पास होने वाली जो फील्ड लाइंस है वो लगातार इसके रोटेशन होने के कारण लगातार नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर चेंजिंग। तो रोटेशन हम कैसे करा रहे हैं, आप किसी भी समय में देखिए रोटेशनल एक्सिस ये वाली है, ये जो 90 डिग्री है इस पेज के, यानी ये फील्ड लाइंस के हमेशा 90 डिग्री पे है इसकी रोटेशनल एक्सिस हमारी तरफ, ठीक है ना। तो यही इसकी रोटेशनल एक्सिस है जो हमेशा 90 डिग्री होनी चाहिए, एंड इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस। तो अब ऐसे केस में आई एम मेकिंग रेक्टेंगुलर कॉयल, एक रेक्टेंगुलर कॉयल बना रहा हूँ, ठीक है। पहले इसको थ्योरेटिकली समझ लेंगे, फिर उसके बाद ये कैसा दिखता है रियल में उसको देखिए। ये है, मैंने ऐसा कुछ सिंबॉलिकली बना लिया है, एक्चुअल में मैंने आपको दिखा दिया है कि ये परपेंडिकुलर एक्सिस कैसी है। ये इसकी रोटेशन एक्सिस हो गई जो कि ऑब्वियसली 90 डिग्री है, किससे, फील्ड लाइन से। ये एक सिंबॉलिक व्यू है क्योंकि ऐसा हम 3 डायमेंशन बना नहीं सकते हैं। If this is rotating in clockwise direction, so this is axis of rotation. All right, now this is P, Q, R and S coil. ये गैप बहुत कम है, बहुत कम है जो इनके बीच का है, जहाँ से मैंने 2 वायर दिखाए। अब देखिए इसमें क्या है, इसको रोटेट कराना है इसी एक्सिस में ऐसे पकड़ के, तो ये कॉयल के थ्रू जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ये लगातार चेंज हो रही होंगी। ये हमने क्लास 10th में भी पढ़ रखा है। अब देखिए इसमें क्या किया मैंने, 2 स्लिप रिंग्स जोड़ी हैं। स्लिप रिंग्स मतलब एक रिंग जुड़ी हुई है ये वाले तार से, देखिए ये जो लंबा वाला है ये अलग आया है, इसमें एक रिंग ऐसे जुड़ी हुई है, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है, और एक रिंग यहाँ ऐसे जुड़ी है जिसके थ्रू ये इधर वाला वायर टच नहीं है, जो आगे आया है वो टच नहीं है, ठीक है, ये ऐसे, ये अलग है रिंग, एक ये वायर निकल के आया है जो अलग आगे वाले में जुड़ा है, दोनों टच नहीं है। इन स्लिप रिंग से लगा हुआ एक ब्रश है जो कि बहुत स्मूथ ब्रश है, ये केवल टच कर रहा है इस स्प्रिंग को, मतलब ये स्प्रिंग तो घूम रही है लेकिन ये ब्रश कह लें हम इसको B1 और इसको कह लें हम B2, ये दोनों ब्रशेस हैं। B2 ये है स्लिप रिंग्स S1 S2। S1 कनेक्टेड है, S1 राइट साइड वाले से कनेक्टेड है, ये इस वाली आर्म से, देखिए ये वाले से, और S2 आगे वाला इस वाले से कनेक्टेड है। और ये रोटेशन किस तरह का है, ये रोटेशनल एक्सिस ही हो गई, ये डॉटेड जो मैंने बनाई है, दिस इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हमने ब्रशेस से कनेक्ट कर दिया सर्किट को, क्योंकि ये ब्रशेस कैसे हैं, ये कंडक्टिंग ब्रशेस हैं, ऐसे मटेरियल के हैं जो कंडक्टर है, ठीक है ना। ये एक सर्किट हो गया जिसमें एक लोड आर लगा है कि अगर इसके अंदर कोई करंट बही तो इस लोड आर के अक्रॉस वोल्टेज हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये वर्क कैसे कर रहा है, ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये आर्मेचर होता है, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसको, आर्मेचर, ये हमने 10th में भी पढ़ रखा है। और ये ब्रशेस हो गए, ठीक है। अब हमको पता है कि जैसे जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टाइम में ये ऐसे अरेंज्ड है, यानी ये इस तरह से है, ये वाली आर्म PQ है और नीचे वाली जो नीचे की ओर है ये आर्म RS है। तो मान लीजिए शुरू में ये ऐसे 90 डिग्री पे है, यानी PQ ऊपर है, RS नीचे है फील्ड लाइन से। तो ऐसे हम क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू करते हैं, यानी दाएं तरफ, A इस तरफ से। तो सबसे पहले PQ नीचे जाना शुरू करेगा, PQ नीचे जाना शुरू करेगा, PQ वाली आर्म पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन में नीचे जाएगी। आपको याद होगा नॉर्थ साउथ, ये मैं रफ में बना रहा हूँ, इसको देखिएगा, नॉर्थ साउथ। अगर ये कोई आर्म है, मान लीजिए ये PQ है और ये नीचे की ओर शिफ्ट हो रही है फील्ड लाइंस में, है ना, फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर नीचे मूव कर रही है PQ, ये एक तार नीचे जा रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से ये फोर्स ऑन कंडक्टर होता है ना, यानी जिधर की ओर जा रहा हो ये फील्ड लाइन होती है तो ये करंट इंड्यूस्ड होती है।
फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ मैंने ऐसे कर दी, ये हो गया नीचे जाने का, ठीक है ना, अंगूठा हम नीचे की ओर मूव करता दिखाएं, तो ये जो उंगलियों की दिशा होगी यानी बाहर की तरफ है ना, इधर की तरफ, ये एक करंट इसमें इंड्यूस हो जाएगा राइट हैंड फ्लेमिंग्स रूल से। यानी PQ में जब टॉप पोजीशन से PQ राइट हैंड की तरफ यानी क्लॉकवाइज नीचे की तरफ चलना शुरू करता है तो PQ में करंट कैसी जनरेट होती है, राइट वर्ड्स यानी अपनी तरफ, और उसी टाइम में RS नीचे से ऊपर चलना शुरू करेगा। जैसे PQ, ये वाली ऊपर वाली उंगलियां मेरी PQ हैं, नीचे वाली RS है, तो जब ये PQ ऐसे मूव करेगा यानी नीचे की ओर जा रहा होगा तो RS ऊपर की ओर आ रहा होगा रोटेशन में, तो RS में कैसी जनरेट होगी, चूंकि हमारा मोशन ऊपर हो गया तो करंट ऐसे, ठीक है ना, यानी इस तरह से फील्ड लाइंस तो ऐसे, यानी करंट RS जो है वो S से R की तरफ होगी। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, इफ PQ फ्रॉम टॉप मूविंग डाउनवर्ड, सो फ्रॉम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, current in PQ will be induced from कहाँ से कहाँ, अब देखिए ये बाहर की ओर आता दिख रहा है ना, तो Q to P, ठीक है ना, तो कहाँ से कहाँ तक आएगी, Q से P की तरफ इंड्यूस होगी, एंड RS is moving upwards at the same time, so current in RS will be from S to R, देखिए ये नीचे से ये उधर से इधर जाएगा ना, इधर से ऊपर की ओर उल्टा, फ्रॉम S to R। तो यानी फर्स्ट हाफ साइकिल में PQ, Q से P की तरफ और S से R की तरफ, यानी B1 हमारा पॉजिटिव होगा, सो फॉर फर्स्ट हाफ साइकिल B1 पॉजिटिव होगा, B2 निगेटिव होगा। ये आधे का हुआ जब PQ ऊपर था और RS नीचे था और ऐसे चला, लेकिन आधी मूवमेंट के बाद PQ नीचे आ गया और RS ऊपर चला गया, है ना, तो अब RS दाएं तरफ मुड़ेगा और PQ नीचे से ऊपर चलेगा, तो यानी अब करंट की दिशा बदलेगी RS में। सो फॉर सेकेंड हाफ साइकिल, फॉर सेकेंड हाफ साइकिल करंट कैसी होगी, करंट इस तरह होगी कि PQ वाली जो करंट है वो किधर से किधर होगी, क्योंकि अब PQ नीचे है और RS ऊपर है, तो R से S की तरफ चलेगी, R to S, एंड PQ में कैसी होगी, P to Q, ठीक है ना। सो इस बार क्या होने वाला है, B2 पॉजिटिव होने वाला है और B1 निगेटिव होने वाला है। यानी आप देखिए इस पर्टिकुलर में पहले एक बार B1 पॉजिटिव B2 निगेटिव, यानी इस तरह से करंट बही, है ना, B1 पॉजिटिव B2 निगेटिव, लेकिन सेकेंड हाफ में जब ये आधा चक्कर घूमने के बाद अब ये अगला आधा मूव करेगा तो B2 पॉजिटिव और B1 निगेटिव, यानी करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, ठीक है। तो यही स्लिप रिंग्स जो हैं ये इस तरह से एडजस्टेड हैं कि ये यहाँ पे हमें आउटपुट में ब्रश के थ्रू हमें आउटपुट दे रही हैं, जो लोड के क्रॉस हम यहाँ पे करंट फ्लो करवा रहे हैं। और करंट हम ये पाते हैं कि जब ये रोटेशन कर रहा होता है तो जब हमारी ये वाली आर्म ऊपर होती है और RS आर्म नीचे होती है तो इस करंट की दिशा इस तरफ से होती है, यानी क्लॉकवाइज होती है, और जैसे ही हमारी ये जो आधा रोटेशन कंप्लीट करके जो कॉइल है ये नीचे से फिर अब ऊपर आना शुरू करता है, यानी अगली हाफ रोटेशन जब करता है तो करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है, यानी करंट लगातार फर्स्ट हाफ में एक डायरेक्शन में मूव करती है, सेकेंड डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन में करंट इस सर्किट में मूव करती है, यानी हमें एक ऑल्टरनेटिंग करंट मिलती है, ठीक है। और इसी तरह
एक अल्टरनेटिंग करंट जनरेट करता है, लगातार इसको रोटेट करना। तो ये तो अभी इसकी थ्योरी हो गई। अभी इसके आगे इसमें आयरन कोर कैसे कनेक्ट करते हैं, क्या कैसे यूज़ होता है, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।